Okay. Hello, everyone. Thank you so much for joining in. Welcome back. I can see most of you are the regular participants now. Friends, आज जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं वो सेल्फ हीलिंग का टॉपिक है एंड आज मैं आप लोगों के साथ एक टेक्निक के बारे में बात करने वाली हूँ. इस टेक्निक का नाम है होओपोनोपोनो एंड इट इज एन एंशिएंट हवाईयन टेक्निक जो बहुत प्रोमिनेंटली यूज होती आ रही है फॉर सेल्फ हीलिंग पर्पसेस. एंड इसके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो लोग अपने यूज करने के बाद शेयर कर चुके हैं. देयर सो मेनी स्टोरीज अबाउट इट. आप लोग गूगल भी कर सकते हैं आफ्टर दिस सेशन टू फाइंड मोर अबाउट इट, बट आई विल गिव यू द बेसिक आइडिया व्हाट इट इज एंड हाउ वी यूज इट. So Ho'oponopono technique is an ancient Hawaiian technique, and the term in itself has the meaning. Ho'oponopono, if you break the word into simpler form, it is Ho'opono. Ho means to make, and opono means to make it to correct something. So Ho is to make, and opono is right. And opono means doubly right. So ho'oponopono technique means to correct something, and to correct it twice means to doubly correct something. Now अब हमें क्या correct करना है इस technique के साथ? This is what we are going to talk about today and no more. Actually मैं आपको इसके बारे में बताऊं इससे पहले मैं आपसे एक बहुत छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ. और ये स्टोरी एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, एक रियल लाइफ स्टोरी है डॉक्टर ह्यू लेन की, जिन्होंने इस टेक्निक को एक बहुत ही डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में यूज किया और इनक्रेडिबल रिजल्ट्स पाए. डॉक्टर ह्यू लेन एक थेरेपिस्ट हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर टेक्निक को यूज किया क्रिमिनल्स के ऊपर जो मेंटली अफेक्टेड पीपल थे. There was a hospital, mental asylum in Hawaii, and in that particular place, in that particular mental asylum, जो भी patients थे वो बहुत ज़्यादा mentally affected थे. Means they had lot of conflicts and problems, जिसकी वजह से उनका behavior pattern बिल्कुल uncontrollable था. They needed treatment badly, but उनको treatment देना इतनी आसान बात नहीं थी. They were so violent because of the thought patterns they were holding on to. जो mental conflicts उनके थे, उनके mental issues बहुत different level के थे, difficult to handle थे. वो ऐसी एक threatening जगह बन चुकी थी कि वहां पे कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कोई भी थेरेपिस्ट टिक नहीं पा रहा था. Everybody, whoever came there as a staff, they had their own problems. It was so difficult to manage the patients there. तो वहां पे स्टाफ को सरवाइव करना मुश्किल था. पीपल यूज टू लीव द जॉब. मतलब वहां पे जॉब मिलती भी थी, लोग थोड़ा टाइम करने के बाद दे फाउंड इट सो डिफिकल्ट टू मैनेज एंड हैंडल द सिचुएशंस ओवर देयर कि वो उसको उस जॉब को क्विट कर जाते थे. Management over there was finding it very difficult to manage these kind of patients, and that too without the staff. Now in that scenario, what was expected? They were looking for other staff. They were looking for therapists. They were looking for the doctors or nurses to come and treat these patients. These patients were so uncontrollable, so violent that इनको हमेशा बांध के रखा जाता था और इनको सिडेट किया जाता था continuously. मतलब उनको मेडिसिन देनी पड़ती थी ताकि उन्हें कंट्रोल में रखा जा सके. Otherwise they were difficult to manage. अब वो कितना करा जाए, वो तो आप एक बीमार को और ज्यादा बीमार कर रहे हैं, इसका मतलब है. Now the scenario was such, but Dr. Hugh Len came across this job opening, and he agreed to accept this proposal. उनकी सिर्फ मैनेजमेंट के साथ एक ही कंडीशन थी कि मैं इन पेशेंट्स को अपने तरीके से हैंडल करूंगा, अपने तरीके से ट्रीटमेंट दूंगा. I will not follow the traditional therapy method. I will not do the things that have been already done and people have failed, tried and failed. Management, please mute yourself. Management had no other option but to accept, because they were in desperate need of these helps. Therapist चाहिए था उनको इन पेशेंट्स के लिए, तो उन्होंने अग्री किया. डॉक्टर ल्यूहेन का एक मानना था, उनका एक बिलीफ सिस्टम था कि उनका जो जन्म है, उनका लाइफ का पर्पस, उनका इस धरती पे आने का एक ही रीजन है, एंड दैट इज टू क्लेंस.
क्लीन करना। अब अगर आप किसी नॉर्मल इंसान से ये बात करो कि और उसे बताओ कि मेरा लाइफ का पर्पस है क्लीनिंग करना, तो वो क्या समझेगा इससे? मे बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट दैट पर्सन डॉक्टर ह्यू लिन, उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि उन्हें क्या करना है। हिज पर्पस वाज टू इरेडिकेट प्रॉब्लम्स, to remove, wipe out what is not needed, which is not serving any higher purpose. तो डॉक्टर ल्यूहेन ने अपनी जॉब एक्सेप्ट करी। उन्होंने कंडीशंस बता दी कि मैं ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करूंगा, जो चीजें जिस तरीके से थेरेपीज दे दी जा चुकी हैं वो सब मैं नहीं करूंगा। आई हैव माय ओन वेज ऑफ ट्राइंग एंड हैंडलिंग दीज पेशेंट्स। एंड सरप्राइजिंगली जब उन्होंने अपना मेथड ऑफ ट्रीटमेंट शेयर किया, उसमें उन्होंने कहा कि मैं एक भी पेशेंट से डायरेक्टली मीटिंग नहीं करूंगा। आई विल हैव नो वन वन इंटरेक्शन, मैं किसी से नहीं मिलूंगा। पीपल वर वेरी शॉक्ड। उन्हें लगा कि अगर आप मिलोगे ही नहीं पेशेंट से, उससे बात ही नहीं करोगे, तो आप कैसी थेरेपी दोगे, कैसे ठीक करोगे किसी को? बट स्टिल, as I told you, management had no other option but to believe and wait for a miracle to happen, and it did happen. डॉक्टर ल्यूहेन ने एक एक करके हर एक पेशेंट की रिपोर्ट पढ़ना शुरू कर दिया। अब आमतौर पर अगर कोई डॉक्टर को किसी पेशेंट की रिपोर्ट दी जाती है तो वो क्या करता है? वो मेडिकल हिस्ट्री को पढ़ता है अपनी नॉलेज के लिए कि मुझे क्या मेडिसिन देनी है। बट डॉक्टर ह्यूलेन ने एक चीज एक्स्ट्रा करी, एंड आई थिंक दैट वाज द की टू द मिरेकल दैट वाज येट टू हैपन। उन्होंने उस हर एक पेशेंट की रिपोर्ट को ना केवल पढ़ा, बट उस हर एक पेशेंट के क्राइम रिकॉर्ड, जो भी सर्कमस्टांसेस में पेशेंट ने कुछ भी गलत किया है, उसकी जड़ तक जाने की कोशिश की और उसके हर एक इमोशन को अपने अंदर फील किया, उसको एक्सपीरियंस किया कि अगर ये पेशेंट, ये क्रिमिनल एक मर्डर करके आया है तो इसने ऐसा क्यों किया होगा। कोई भी इंसान, कोई भी सोल गलत नहीं होती, वो गलत बन जाती है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। नाउ ही वांटेड टू गो टू द डेप्थ ऑफ द reason why that person reacted in that way, and he felt each and every negative emotion that that person may have been holding on to. The fear, anger, anger towards himself, anger towards society, any kind of anxiety, any kind of frustration, all those negative emotions he felt, imagining that patient to be himself. And slowly and gradually, my dear friends, it so happened, ऐसा हुआ कि one second, stay on mute people. Okay, it so happened कि miraculously within a year इन पेशेंट्स की ऐसे कंडीशन इंप्रूव हुई कि उनको अब बांध के रखने की जरूरत नहीं थी। दे वर मैनेजेबल टू दैट एक्सटेंट कि उनसे कोई भी आके मिल सकता था, बात कर सकता था, एंड नोबडी वाज सेडेटिंग देम। उन्हें कोई ओवरडोजेज, कोई मेडिसिन नहीं दी जा रही थी, कोई इंजेक्ट नहीं किया जा रहा था। एंड दिस थेरेपी डॉक्टर ह्यूलेन वाज डूइंग ओनली ऑल बाय हिमसेल्फ। अब फ्रेंड्स, इस बात में एक चीज बहुत समझने की है, वो ये है कि आप अपने लिए इमेजिन कीजिए, आपके हिसाब से आपकी फैमिली में, आपके सराउंडिंग्स में कोई भी इंसान जिसको आप गलत मानते हैं, उसे इमेजिन कीजिए, उसे विजुअलाइज कीजिए। आपके हिसाब से जो भी कुछ भी अपनी लाइफ में गलत करता है या ठीक से हैंडल नहीं करता है, या जो भी आपके हिसाब से गलत है, वो इंसान गलत है, ये हमारा पर्सपेक्टिव है। बट वो पर्सपेक्टिव हम रखते हैं, ये हमारी भी गलती है, बिकॉज when one person is doing something wrong and we are feeding the universe with the thought that he is wrong, he's not understanding, he's intolerable, he's forever angry, then what we are doing, हम लोग उस negative emotion को और feed कर रहे हैं। It's not only the mistake of that person but of the society, but of everybody around. एक पौधे को अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो आप उसको पानी देंगे, और अगर आप उसको मारना चाहते हैं तो आप उसे कोसेंगे। हम सब बहुत बार ये गलती करते हैं कि हम जाने अनजाने में किसी भी इंसान को कोसते हैं, तो हम वो उस चीज को ठीक करने की बजाय और बुरा करते जाते हैं। तो डॉक्टर ह्यू लेन ने क्या किया, उन्होंने उन पेशेंट्स का एनवायरनमेंट क्लीन करना शुरू किया, उन्होंने खुद से क्लींजिंग करनी शुरू करी, ताकि उनके लिए जो नेगेटिविटी उस
सराउंडिंग में भी भरी हुई थी वो क्लीन हो, और थ्रू हिज मेडिटेशन टेक्निक्स, थ्रू दिस टेक्निक, he sent positivity to each of them. And miraculously within 4 years, हर एक पेशेंट, हर एक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला पेशेंट ठीक होके अपने घर जा चुका था. This was nothing less than a miracle. The story is there on YouTube, it is there on Google. आप लोग जानना चाहें तो पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं. Even when I'm telling you, I'm getting goosebumps. कि ये एक इम्पॉसिबल चीज लग सकती है किसी को, कि जिस इंसान को हैंडल नहीं किया जा सकता, आप उसको ठीक करके घर पहुंचा रहे हैं, और वो भी जब आप उससे डायरेक्टली बात भी नहीं कर रहे, उससे समझा भी नहीं रहे हैं. सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, हम दूसरे को समझाने लग जाते हैं, एंड तब हम क्या करते हैं, हम अपने आप को हायर पेडेस्ट्रियन पे समझने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं. बट एक्चुअली में बहुत जगह हम खुद भी गलत होते हैं. तो जजमेंट नहीं होनी चाहिए. दिस इज व्हाट लर्निंग इज. अब ये मिराकुलस था, बहुत ही अच्छी न्यूज थी, सब लोग ठीक होके अपने घर चले गए. अब ये होपोनोपोनो हम क्यों जानना चाहते हैं, हम क्यों इसके बारे में आज बात कर रहे हैं? इट इज बिकॉज, ये तो मैंने क्रिमिनल्स की बात करी या मेंटली प्रॉब्लम वाले लोगों की बात करी, बट थोड़ी बहुत क्लेंजिंग तो हम सबको चाहिए, isn't it? हम सब so many नेगेटिव थॉट से घिरे हुए हैं. हम अंदर से, अगर हमारा एक्चुअली में ये चेहरे वाला मुखौटा हटा दिया जाए तो बहुत सारी क्लिनजिंग की जरूरत है. इट इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज वी मे लुक आउटसाइड, एंड टू डू दैट वी नीड टू डू दिस प्रैक्टिस. And friends, if this can happen by somebody else doing it for someone, and it can give such results, just imagine कि आप अपने आप के लिए करें, अपने loved ones के लिए करें, तो इसके results कितने beautiful और कितने rewarding हो सकते हैं. एंड हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, वो उसका रीजन सिर्फ हमारे प्रेजेंट लाइफ टाइम नहीं हो सकता. तो एक और चीज हमें क्लियर होनी चाहिए, हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किसी तरह का एंगर होल्ड कर रहे हैं, किसी तरह का फियर होल्ड कर रहे हैं, किसी तरह की फ्रस्ट्रेशन होल्ड कर रहे हैं, हो सकता है आपकी प्रेजेंट लाइफ टाइम सिचुएशंस हो, बट इवेंचुअली वो थॉट हमारे ही हैं और वो ही प्रोजेक्ट हो रहे हैं. यू चेंज द चैनल यू वांट टू वॉच. आप अपनी लाइफ को जैसी मूविंग पिक्चर बनाना चाहते हैं, जैसी वीडियो चाहते हैं, जैसी विजुअल चाहते हैं, जैसी रियलिटी चाहते हैं, जस्ट ट्यून इन टू दैट चैनल. तो हमें उस कंट्रोल को देखना है. वी हैव टू वर्क ऑन आवर थॉट पैटर्न. अब ये थॉट पैटर्न हमारे अंदर आते कहाँ से हैं? क्यों हम नेगेटिव सोचते हैं? व्हाट इज द रीजन? हमको कोई कहता तो नहीं है सोचने के लिए, ऑटोमेटिकली हमारे मन में थॉट्स नेगेटिव क्यों आते हैं? इट्स बिकॉज वी आर सोल्स, एंड हम लोग लाइफ टाइम्स क्रॉस करके आए हुए हैं. दिस इज वन ऑफ द लाइफ टाइम्स वी आर लिविंग. इट्स नॉट द ओनली लाइफ टाइम आवर सोल हैज हैड. तो इतने सारे लाइफ टाइम्स जो हम क्रॉस करके आए हैं, उसकी मेमोरीज, उसके एक्सपीरियंसेस, उसके ट्रॉमास, उसके एंग्शियसनेस, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है. And the subconscious mind is 90% of our mind. 10% is our conscious mind, which we use and say that we have logical brain and we can think and assess things. But 90% is our subconscious mind, in which all these informations, all these emotions, baggages are stored. And जब आप मान लो आप 100 लाइफ टाइम्स जी चुके हो, 50 लाइफ टाइम्स जी चुके हो, जो भी आप फिगर समझ लीजिए, इतने सारे लाइफ टाइम्स में इतने सारे नेगेटिव इमोशंस आपने कभी क्लींस ही नहीं किए, तो आप सोचो कितनी ज्यादा क्लीनिंग की जरूरत है. दैट इज व्हाई नाउ दैट वी हैव कम टू द अवेयरनेस कि ऐसा कुछ है, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट, व्हाई नॉट डू इट? एंड व्हाट इज दिस टेक्निक? Ho'oponopono technique is nothing but meditating on 4 statements, 4 positive statements. I am sorry. Say sorry to anybody who you may have hurt, to yourself, क्योंकि हम सेल्फ हार्म भी बहुत करते हैं. Please forgive me. Ask for forgiveness and be ready to forgive others also. Third statement is be very sure that you will get that forgiveness. Thank you. Thank you is the third statement. And the last and the most beautiful statement is I love you. So the 4 statements are I am sorry. Please forgive me. What is then? Thank you and I love you. Why do we say I love you? Now this you may say, you have to visualize who you want to say it for. Do you want to say it for yourself? Because आप इतने टाइम तक एक अनकॉन्शियस लाइफ जीते आ रहे हो, आप इतने अनअवेयर थे, तो आप
भूले बिसरे जाने अनजाने आप अपने आप को भी बहुत हार्म कर रहे थे, क्योंकि आप ये नेगेटिव इमोशंस को रिलीज नहीं करना चाह रहे थे। तो आप अपने आप को भी सॉरी बोल सकते हो। अगर आप किसी इंसान के लिए नेगेटिव इमोशंस रख रहे हो, तो जस्ट इमेजिन दैट सोल in front of you and do just say these statements for that person. ये 4 statements आपकी लाइफ चेंज कर सकती हैं फ्रेंड्स। Do it twice a day, at least once a day, I would say, and see those miraculous changes happening. Life is very beautiful and love is the most healing emotion ever possible.